on this computer. In progress. ठीक है. So you will send answers only to me. Okay, I will explain the concept. Then I will give that same thing. 1 minute time to solve the question, and that's it. Okay, chalo. Shall we begin? हाँ, म्यूट पर. हाँ, प्लीज म्यूट पर रहना. अब मैं समझाना शुरू करूंगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अब ध्यान से पहले एक बार हिंदी में सुन लो, फिर मैं इसको अंग्रेजी में परिवर्तित करके बोल दूंगा. पहली बात ये भैया, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि नफा और नुकसान. प्रॉफिट कब होता है? जब आप किसी चीज को ज्यादा दाम पर बेचते हैं जितने में आपने उसको खरीदा है उससे. ठीक है, इसका मतलब जब आप किसी चीज को कम दाम पर खरीदें और ज्यादा दाम पर बेच दें तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है. उसी चीज को अगर आपने ज्यादा दाम पर खरीदा और कम दाम पर बेचा तो आपको क्या होगा? लॉस होगा. इफ यू हैव परचेज्ड एन आर्टिकल लेट्स से फॉर ₹100 एंड इफ यू हैव सोल्ड इट फॉर ₹120 देन यू हैव मेड प्रॉफिट. And similarly, if you have sold it for ₹80, then you have incurred loss. One thing is that. Now, second thing is when you have to calculate profit and loss, you always have to remember that you can compare same units only. Always remember in mathematics that things in same dimensions or things in same units can be compared. Okay. For example, if it is given to me, let's say 1 dozen books cost, let's say ₹100. Okay, so the cost price of 1 dozen book is ₹100, and the selling price of one book is ₹20. Now, if you have to calculate the profit percentage or the loss percentage, in this case, we are having profit. So either you have to calculate the selling price of 12 books or you have to calculate the cost price of one book. You can only compare the same quantities. Understood? बताइए इतनी चीज को. इतनी बात समझ में आ जाती है? दैट यू विल गेट. वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है बाला, अभी आ जाएगा लेटर स्टेज पे. डोंट वरी. प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक थिंग समझ में आ गई. इफ यू हैव परचेज्ड इट फॉर लेस एंड सोल्ड इट फॉर मोर देन यू आर हैविंग प्रॉफिट, एंड इफ यू हैव परचेज्ड इट फॉर मोर एंड सोल्ड इट फॉर लेस देन इट वुड बी अ लॉस. इतनी चीज समझ में आती है? ठीक है. ओके, सो नाउ let's represent this thing mathematically. So first concept is profit and loss percentages. Profit and loss percentages, the basic thing. Okay, how to represent this mathematically? If selling price is greater than cost price, then I say that profit is equal to SP minus CP. And when I have to calculate the profit percentage, then how I will write it? Simply the profit amount, the whatever profit I will get from here, which means SP minus CP. So profit divided by what? CP into 100. That in this way you will calculate the profit percentage. I know this is very basic thing, but most of the time people are not aware of the fact. So one thing which you have to remember here is profit percentage and loss percentages both are calculated with respect to the cost price. Understood? जल्दी बताइए. ठीक है. Similarly, if I do the extension of this thing, if cost price is greater than selling price, then you will incur loss. How much? That is CP minus SP. Similarly, loss percentage would be loss divided by cost price into 100. That would be your loss percentage. Bolo. Understood? Now, let me take a simple illustration to understand this thing better. Here I have a case. Okay. I purchased a car, और लेट्स से अ पेन. आई परचेज द पेन. कार ज्यादा हो जाएगी मेरे लिए, खरीद नहीं पाऊंगा मैं भी, इतनी हैसियत नहीं है मेरी. आई परचेज द पेन लेट्स से फॉर ₹100 एंड आई सोल्ड इट फॉर
how much? Let's change this amount. Let this be 160. I purchased a pen for 160 and I sold it for rupees 200. Okay. So as I can see, this is my what? 200 is what? This is SP and this is CP. So here, as my SP is greater than CP, therefore my profit would be SP minus CP. Yes, exactly. That is 200 minus 160 is equal to 40. And my profit percentage is equal to 40 divided by what? Divided by 160 into 100. Now you will calculate this. 25. तो कितना आया? 25% is my profit. बोलो. Understood? बताइए. इतनी चीज समझ में आ जाती है? Okay. Similarly, if in case 2, it is given to me that cost price is same, CP is same, but now this time SP, my selling price is rupees 135. Okay. So in second case, as SP is less than CP, I will incur a loss and loss would be equal to CP minus SP. That is 160 minus 135. So I will incur a loss of 25 rupees. And similarly, loss percentage would be 25 divided by how much? 160 into what? 100. So again, you will calculate this 250 divided by 16 percentage. Whatever the answer would be, you will get it from here. बोलिए. इतनी दो बातें समझ में आती हैं. Have you understood two things? जल्दी बताइए मेरे को. Okay. This is a very basic thing. Okay. अब इसी में अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा एक लेवल अगर मैं इसको इलैबोरेट करूं, एंड इफ आई हैव गिवन टू यू पीपल दैट, लेट्स से यहीं पर बना रहा हूं, ठीक है, आई हैव अ प्रॉब्लम विद स्पेस. नहीं यार, ये अच्छा नहीं लगेगा, रुक जाओ, थोड़ा स्पेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर इसको देखेंगे, इसको कीप करेंगे. अच्छा, मेरे पास एक ब्लैंक स्लाइड और है, लेकिन मेरे को उसमें कंसेप्ट समझाना पड़ेगा. चलो. हाँ. नाउ in second type question, you have been given that, let's say, cost price is equal to 200 rupees and you made a profit of, let's say, 15%. Okay. So what would be the selling price? You have to simply calculate this. What would be the selling price? I have given you two things, cost price and profit percentage. How will you do it? So basically, I have told you in the last class, I have to calculate here 15% of 200. That means 15 into 200 divided by 100, that is 30. So as if you can see here, profit is equal to SP minus CP. Therefore, SP is equal to CP plus profit. If you are having profit. ठीक है जी. यहीं पर अगर मैं देखूं तो SP is equal to CP plus profit. And here also you will be having SP is equal to CP minus loss. ओके. ये मैं ड्राइव कर सकता हूं इससे. So in this case, I have made a profit of 30 rupees. My cost price was 200. So my SP would be CP plus profit. That is 200 plus 30, yani 230. Okay. Now, in second case, let's say this figure has changed. Now I have incurred a loss of, let's say, 25%. And I have to calculate the SP. So what will I do? Basically, I have to calculate 25% of 200. So that would be 25 into 200 divided by 100. A loss of 50 rupees. Therefore, my SP would be CP minus loss 200 minus 50 is equal to 150 rupees. Boliye. Have you understood both the things? What I have explained on the last slide and on this slide as well. Have you understood this thing? चलिए. अब अगर गोइंग वेल, ठीक है जी,
No issues with the language. Now the type. If it is given that you sold an article for rupees 450, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोल रहा हूं. You have sold an article for rupees 450 and while selling it for rupees 450, you made a profit of 20%. You made a profit of 20%. Understood? इतनी कहानी समझ में आती है? बोलिए. You have sold an article for 450 and you have made a profit of 20%. Then you have to tell me what would be the C or what was the cost price. Okay, that we have to calculate. This we have to find. So as you can see in the earlier example, the question was direct or the straight one. We were given cost price, either the loss percentage or the profit percentage, and we were told to calculate the selling price. हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया था, उसके साथ में लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था, और हमें क्या निकालना था? हमें सेलिंग प्राइस निकाल लेना था. इस बार उल्टा करा गया है. इस बार हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो ऐसी सिचुएशन में बेटे, अगर आपने ये करा, देखिए, अगर आपने ये करा कि 450 का 20% कैलकुलेट करके, दैट वुड बी 90, और उसको 450 में से घटा दिया, दैट वुड बी 360, देन इट वुड बी अ रॉन्ग आंसर. इट वुड बी अ रॉन्ग आंसर. अब इसका वाइस वर्सा करके देखो. ठीक है, अगर आपने ये करा जल्दबाजी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट जो है वो आपको कॉस्ट प्राइस पर गिवन होता है. प्रॉफिट इज गिवन ऑन द कॉस्ट प्राइस, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस. सो यू कैन नॉट कैलकुलेट 20%. सो बाय दिस 360, इसका मतलब तो ये हुआ कि इफ यू विल ऐड 20% ऑफ दिस 360 इन दिस, इट विल बिकम कितना? 450. नाउ व्हाट वुड बी द 20% ऑफ 360? 20% of 360 it would be 72. Now if you will add 360 plus 72, you will get 2. 6 plus 7 13. 3 और 1 4, ये तो 432 ही आया. कितना चाहिए था? 450. आई बात समझ में? क्या गलती कर रहे हो? बताओ बेटा. तो ऐसे नहीं करते हैं. अब यहां पर ध्यान से समझिए कि क्या है, कहानी क्या बनी है. प्लीज लिसन हियर. देखिए, क्या मुझे इस सवाल में कोई कॉस्ट प्राइस गिवन है? जल्दी बताइए. नो. सो इफ आई से कि लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी. प्रॉफिट कितना हो रहा है मुझे बताइए? प्रॉफिट कितना है? 20%. अब ये बता दो, टेल मी वन थिंग, दिस 20% प्रॉफिट विल बी अर्नड ऑन व्हाट? ऑन विच अमाउंट दिस 20% प्रॉफिट विल बी अर्नड? एग्जैक्टली. सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट अर्न करोगे. हाँ, सेलिंग प्राइस पर अर्न करोगे प्रॉफिट के कॉस्ट प्राइस पर अर्न करोगे? सीपी पर अर्न होगा. हाँ, तो मतलब क्या करना है मेरे को? एग्जैक्टली. सो बेसिकली I have to calculate 20% of x. So 20% of x would be what? 20 into x by 100. That would be x by 5. अब थोड़ी देर के लिए पीछे चलो जरा. हाँ भाई, देखना क्या बताया था मैंने. एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट. लिखा अभी, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. देयर फोर हेयर ऑल्सो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. अब बताइए, व्हाट इज द, एक एक करके बताएंगे, जो मैं पूछूंगा सिर्फ वही बोलेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसपी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसपी? 450. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस?
कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पूछा है विशाखा। अरे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। हाँ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट? x/5। एग्जैक्टली। नाउ 450 इज इक्वल टू कितना आएगा ये? 5x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5। देयर फोर 450 इज इक्वल टू 6x/5। अब ये क्या होगा यहाँ पर? ये कैंसिल आउट होगा पूरा? हो तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो। 6, 6×7 = 42, 3×0 = 6×5 30। सो x इज इक्वल टू 75 × 5। दैट वुड बी आई गेस 375। That is the answer. What does that mean? X is equal to 375. What does that mean? CP is 375 exactly. So do you want me to generalize this thing and put all of this thing under a formula? देखो अगर ये चीज समझते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Similarly, now listen to me very carefully. Similarly, if this 20% was loss, so आप यहां पर क्या करते? This sign would have been of minus। ठीक है, बस इतना सा चेंज आता अगर लॉस होता तो। सीपी माइनस लॉस इज एसपी, सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। ओके। नाउ if I have to put all of this into a formula, how will I write this? Please understand here. If I have been given selling price and profit percentage, then cost price is equal to 100 upon 100 plus gain percentage into SP। ठीक है, ये रही एक बात, ये प्रॉफिट का केस है। इफ सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंटेज इज गिवन, लॉस परसेंटेज इज गिवन, देन CP is equal to 100 upon 100 minus loss percentage into SP। Now put everything, एक एग्जाम्पल फटाफट से इलस्ट्रेट कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, SP is equal to 450, profit percentage is equal to 20। Put the values here। 100 upon 100 plus gain percentage, that is 20, 120 into what is SP? 450। bus now when you will solve this you will get the same thing, 375। okay, now the loss part, put 100 divided by 100 minus loss percentage, again SP is equal to 450 and loss percentage is 20%। so 100 minus 820 is 80 into 450। लो जी, ये कट गया, कितना आएगा? 4500 डिवाइडेड बाय 8। तो क्या बनेगा? ये जो भी बनेगा वट एवर इट वुड बी, दैट वुड बी योर सी। बोलिए जी, अंडरस्टूड अप टू दिस पार्ट? दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। बताओ, बस इतनी ही चीजें समझनी है तुमने, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस फिर लॉस बनेगा आगे, जो भी बने वो क्या बोलते हैं, आगे डिस्काउंट का पोर्शन है, वो कंसेप्ट अलग है। चल वी मूव टू द क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। चलो भाई, आ जाओ फिर। पहला सवाल देखो और बना करके आंसर दे दो। तुम्हारा 1 मिनट का समय शुरू हो चुका है।
While solving the questions, first of all, write what is being given to you and what has been asked. It would be an easier way to solve the questions. Initially थोड़ा लिखोगे तो अच्छा रहेगा. Now, your time is over. Please look here carefully. Solution. Now, first of all, I will write what is being given to me. A dealer incurs a loss of 5%. Therefore, a loss figure is given to me, that is 5%. If he sells an article for 1805, so SP was 1805. अगर किसी सामान को उसने 1805 रुपए में बेचा तो उसको 5% का नुकसान झेलना पड़ा. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा, डेफिनेटली द सीपी वुड बी ग्रेटर देन 1805. बोलो हाँ के ना. चलिए, नाउ I have a formula. If loss percentage and SP is given, so I can directly write CP is equal to 100 divided by 100 minus loss percentage into SP. Therefore, it would be 100 upon 95 into 1805. देखिए 100 minus 5. 100 minus 5 is 95. ओके, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, 1805 डिवाइडेड बाय 95, सो इट वुड बी 19. ये कटेगा तो कितना आएगा बेटे, 19 पे डिवाइड हो जाएगा. सो 100 इंटू 19 इज इक्वल टू 1900. व्हाट इज दिस 1900? व्हाट इज दिस 1900? बताइए. Cost price. What I have to calculate now? I want to earn 5% profit on it. Therefore, so my new SP would be, cost price is what? 1900. He wants to make a profit of 5%. Therefore, profit is equal to profit percentage of CP, यानी कि 5% of 1900. So 5% of 1900 कितना होगा बेटे? 95. Therefore, new SP would be what? CP plus profit. And here CP is 1900. Yes, exactly. CP is 1900 plus 95. That is 1995. So if instead of selling the product for 1805, if he would have sold it for 1995 rupees, he would have earned a profit of 5%. बोलिए, understood? Shall I proceed? चलो बेटा. This is a bit tricky. And your time starts now. Okay. So the time is over. Please. Good, good, good. Now look here, please. I will tell you two ways to solve these questions. First of all, some articles were bought at 6 articles for rupees 5. Therefore, CP of 6 is equal to rupees 5 and sold at 5 articles for 6.
Therefore, SP of 5 articles is equal to rupees 6. At this point, you cannot compare these two quantities. Tell me why. Tell me why you can't compare these two quantities at this very moment. Yes, because the number of articles are different. So what you have to do, yes, number of articles are different. So what you have to do, either here CP of 6 article is rupees 5. So therefore, CP of 1 article would be 5 by 6. And similarly, SP of 1 is equal to 6 by 5. Can you compare them now? Please tell me. Can you compare them now? Yes, because CP of 1 article is given and SP of 1 article is given, and here it is, we can clearly see that SP of 1 is greater than CP of 1. Therefore, profit is equal to what? SP minus CP. यानी कि 6 by 5 minus 5 by 6. I will simply subtract the fractions and it would be 36 minus 25 divided by 30. That would be 9 by 30. This is what? This is my profit. Now I have to calculate the profit percentage. So profit percentage is equal to profit divided by CP into 100. Now remember one thing. As you are comparing the profit of 1 unit, so please take the cost price of 1 unit only. Don't do this thing that you are taking the cost price as 5. Okay. हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 9 by 30 डिवाइडेड बाय कितना है? 5 by 6 into 100. So it would be 9 by 30 into 6 by 5 into 100. तो ये हो गया 5 और ये कितना बचेगा? 5 दूनी 10, 0 5। अच्छा, 9 चौक 36%। कैसे 44% निकाल रहे थे भाई तुम लोग? मैंने कुछ गलत तो नहीं करा ना? गलत तो मैंने नहीं करा। हाँ, करा मैंने गलत। रुक जाओ, मजे में हो गया मैं ज्यादा। रुक जाओ। 11/30। हाँ हाँ ठीक है बेटा, समझ गया मैं। मैंने मान ली अपनी गलती, मैं ही गलत हूँ। चलो दोबारा कर देते हैं यार, क्या हो गया। 11/30, so profit percentage would be 11/30 divided by 5/6 into 100। तो ये कितना बचेगा? 11/30 into 6/5 into 4, ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 44। बोलो, आ गया? डन है? हाँ, हो जाता है कभी कभी, ऐसी क्या बात हो गई। हाँ हाँ, एक चीज और कर सकते थे तुम लोग, यहाँ पर देखो, एक आसान तरीका बताओ। सी, some articles were bought at 6 article for rupees 5, so 6 article, okay, 6 into 5 would be 30। Therefore CP of 30 articles would be कितना? बताइए। आर्टिकल्स कितनी कर रहे हो तुम? 30 कर रहे हो, 5 टाइम्स कर रहे हो, मतलब सीपी भी कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 25। तो सीपी ऑफ 30 आर्टिकल इज 25 एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 6। कितना? फॉर रुपीज 6। सो देयर फोर यहाँ पे सो किससे मल्टीप्लाई करो? 5 into 6, यानी 30 आर्टिकल्स हो गई अगेन। एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स। जब आर्टिकल को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी 6 से करो, तो कितना हो गया? 36। तो 36 माइनस 25 11, और 11 डिवाइडेड बाय कितना? 11 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 44। एक तरीका ये भी हो सकता था। ठीक है, समझ गए बात को? शैल आई प्रोसीड?
नो वरीज, नो वरीज। पहले वाला समझ में आ गया ना, सिंगल यूनिट कंपेयर करी थी। बस कोई दिक्कत नहीं। वो सबसे बेस्ट वे है, उसमें गलती कम से कम करो। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। आई एम ओनली गिविंग 30 सेकेंड्स नाउ। मेरे को जाके खाना भी बनाना है क्योंकि। चलो 40 सेकेंड्स ले लो। ठीक है। चलो देखो बेटा, इसको करने के दो तरीके होंगे। देर आर टू ways to solve this question. On selling 17 balls at rupees 720, so assuming each ball, और यहाँ पर आप हमेशा यही assume करेंगे that each every ball cost same. So SP of 17 is equal to 720. Therefore SP of 1 will be how much? 720 by 17. So SP of 5 will be how much? 720 divided by 17 into 5, which would be 0, 5 दूनी 10, 1 5 सत्ते 35 और 1 36 divided by 17. So this is the SP of 3600 by 70. अच्छा, लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स दे रखा है मेरे को। ओके ओके ओके, अब ये ऐसे नहीं होगा फिर। दिस हैज बीन टोटली चेंज। ओके, सो व्हाट इज बीन गिवन टू मी कि एसपी, देखिए मेरे को क्या दिया है इसने, सीपी ऑफ 17 बॉल्स माइनस एसपी ऑफ 17 बॉल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 5 बॉल्स। ठीक है जी, इसने मेरे को ये गिवन करा है। लॉस यही होता है ना, लॉस क्या होता है आपका, सीपी माइनस एसपी इज लॉस। सो देयरफॉर जब मैं 17 बॉल के कॉस्ट प्राइस में से 17 बॉल का सेलिंग प्राइस घटाता हूं तो मुझे कितना लॉस हो जाता है, मुझे 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करूं तो सीपी ऑफ 17 बॉल्स माइनस सीपी ऑफ 5 बॉल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 17 बॉल्स। बोलो हाँ कि ना? इतनी बात डन है। सो सीपी ऑफ 17 बॉल्स माइनस सीपी ऑफ कितना हो गया, 5 बॉल्स, किसके बराबर हो गया है बताओ? दिस वुड बी सीपी ऑफ 12 बॉल्स। और एसपी ऑफ 17 बॉल्स की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसपी ऑफ 17 बॉल्स? 720 is given to me. So if CP of 12 balls is 720, then CP of one ball would be how much? 720 divided by 12 is equal to 60 rupees. So answer is D. बोलो हाँ कि ना, yes और no. नहीं आया तो एक बार फिर उसमें देखेंगे, रिकॉर्डेड में देखेंगे, और फिर भी ना आए तो फिर अलग से मैसेज करके पूछ लेना, डीएम कर देना मेरे को। अंडरस्टूड? चलो इसी बात पे अगला सवाल देखो। मैं ही कर रहा हूँ यार इसको सॉल्व। ठीक है, 100 oranges are bought at the rate of 350, are at the rate of 350 and sold at the rate of 48 per dozen. चलिए जी, what does that mean? देखिए, CP of 100
is equal to 350. And SP of per dozen, dozen means 12, is equal to 48. Right now we cannot compare them. Therefore, CP of 1 is equal to 350 divided by 100. That is 3.5. And SP of 12 is equal to SP of 1 कितना बनेगा उस हिसाब से 48 divided by 12 is equal to 4. So as I can see, SP is greater than CP. Therefore, I will make profit. And profit would be how much? SP minus CP. That is 4 minus 3.5 is equal to 0.5. This is my what? Profit. Now I will simply calculate profit percentage. Yes, exactly. Profit divided by CP into 100. 0.5 divided by 3.5 into 100. तो क्या हो गया 5 एक 5 30 ये 10 से 10 को कट जाएगा 100/7 वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज बोलो आई बात समझ में 100/7 दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन दैट इज QRD क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवाइजर हाउ प्लीज सी हियर 100 7 so 7 1 3 0 and 7 4 28 2 so here Q is 14 R is 2 and divisor is 7 therefore it can also be written as 14 2/7 percentage bolo done hai ji shall I proceed with the next question please it was very easy simple बिल्कुल basic level सवाल था जल्दी से कीजिए इसको कवर so a trader mixes 26 kg of rice at rupees 20 per kg. Therefore, rice 1 CP is equal to how much? 26 into 20, that would be 520. Okay, ji. Now, rice 2 CP is equal to 30 kg of rice of other variety, 36 rupees per kg. So 30 into 36, it would be 3 1080. Therefore, total CP of, देखिए, what is the quantity? What is the total quantity? 26 plus 30, that is 56 kgs. 56 kgs is equal to कितना होगा ये? 0. 1600. बोलो. Understood up to this point? Please tell me. Understood up to this point? I have a total mixture of 56 kg, out of which there is one variety which is 26 kgs and there is variety 2 which is 30 kgs. Individual price of each variety is given, so I have calculated the total cost price. Both. Understood? सभी लोग बताएं बेटा. As this mixture is sold for 30 rupees per kg. इसको 30 रुपए per kg में बेचा है. Therefore, SP of 56 kg is equal to 30 into 56. कितना हो जाएगा? 3 6 18 का 8 हासिल 1 3 5 15 और 1 16 0. So you have been given SP and you have been given CP. You can directly calculate profit percentage, which you will calculate on your own and you will mention that in the comment section of YouTube. ठीक है. एक तो तुम लोग ना YouTube की वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो. कर दिया करो यार प्लीज सब लोग. इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो तुम लोग. You are a good student. That's why you do. You are my favorite now. That's why.
लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, यू आर ऑल्सो, दिस वॉज जस्ट एवरेज. अशोक. ओके. What is given? A shopkeeper sell some articles at the profit of 25% on the original price. Okay. What is the exact amount of profit? आपको exact amount निकालना है profit का. To find the answer, which of the following information given in statement 1 and 2 is are necessary? Sell price of the article. So to calculate the profit, do you need the sell price or not? Selling price or not? बताइए. Yes. Of यार, कैसी बात करते हैं नवीन. सेलिंग प्राइस ही ना पता होगा तो कैसन काम चलेगा. भाई देखो, इफ यू विल बी प्रोवाइडेड विद सेलिंग प्राइस. हाँ, रुको ना एक मिनट. इफ यू विल बी प्रोवाइडेड विद सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज, देन यू विल बी रीच टू द कॉस्ट प्राइस, एंड देन ओनली यू कैन कंपेयर द एग्जैक्ट अमाउंट ना. आई हैव सेट 25% प्रॉफिट. ओके. सो बट यू नीड द नंबर, amount of profit, exact amount of profit, not the percentage. इसके लिए क्या पता होना चाहिए? अब 25% से एग्जैक्ट नंबर पता होने के लिए क्या पता होना चाहिए? या तो आपके पास क्या हो, एक सीपी हो या एक क्या हो, एसपी हो. बोलो. डिड यू गेट द मिस्टेक नवीन, जल्दी बताओ. है ना. तो एसपी की मेरे को जरूरत पड़ेगी. क्या मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी? यस. बिकॉज विदाउट नोइंग हाउ मच आर्टिकल्स आई हैव सोल्ड, हाउ विल आई कैलकुलेट? हाउ विल आई कैलकुलेट कि कितने आर्टिकल्स का निकालना है? एग्जैक्ट प्रॉफिट चाहिए ना. सो देयरफॉर आई नीड बोथ द स्टेटमेंट्स टू बी डन. बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी. बोलो जी. आगे चलूं क्या जी? Shall I proceed? Tomorrow we will not be having any class. कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी. By selling a product with 20% profit, how much profit was earned? आपने एग्जैक्ट अमाउंट बताना. प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%. आपसे कहता है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज ₹40, विच मीन्स एसपी माइनस सीपी इज 40. दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है. एंड एसपी माइनस सीपी इज व्हाट? प्रॉफिट. पता लग गया भाई एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या है? ₹40. यानी कि स्टेटमेंट वन से आंसर आ जाता है, नहीं आता है? बोलो. स्टेटमेंट वन से अकेले आंसर आता है कि नहीं आता? आता है. सो डू आई नीड टू चेक द सेकंड स्टेटमेंट और नॉट? डू आई नीड टू चेक द सेकंड स्टेटमेंट और नॉट? Yes, obviously I need to change the second state. Obviously I need to check the second statement. So in second statement, it is given to you that selling price is 120% of the cost price. ठीक है. 20% दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. इससे क्या पता लगेगा? कुछ भी बताना. इससे क्या पता चलेगा तुम्हें? बोलो. दैट एक्स प्लस वॉट एवर प्रॉफिट इज, दैट इज 20% ऑफ एक्स अगर हम करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ. देन आई विल गेट 120% ऑफ एक्स. देन आई विल गेट 120% ऑफ एक्स. ठीक है जी. तो यहां से मेरे को क्या निकल करके आएगा? देखें कुछ निकालें यहां से क्या निकलता है. ये तो बनेगा क्या? 120x/100.
एंड ये भी क्या बनेगा 120x/100। ये तो बेटा सेम साइड हो गई, ये तो कुछ बना ही नहीं यहाँ पे तो। यू कैन नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर, which means by using second statement alone you will not reach anywhere. So one alone is sufficient while two alone is not sufficient to answer the question. बोलो आई बात समझ में कि नहीं? yes or no? ठीक है प्राप्ति, आपने बेटा सी बोला था, आगे गलती समझ में क्या हो रही है? इसको बताइए। अ मैन मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ राइस एक्स एंड वाई एंड सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 17 per kg। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कहते हैं द रेट ऑफ एक्स इज 20 per kg एंड द रेट ऑफ वाई इज 13 per kg। ओके, यू नीड बोथ द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताया था आपको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, बट इवन आफ्टर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स कैन यू कैलकुलेट द आंसर और नॉट? बताओ। द आंसर वुड बी नो, because you don't know in what ratio x and y are mixed. अब ये मत कहना कि सर 1 किलो x का ले लेंगे 1 किलो y का ले लेंगे, देन ऑल्सो यू आर अज्यूमिंग अ रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, जैसे कि इफ आई विल कंपेयर दिस क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, what was the good thing here? The exact quantity of rice which was mixed was given to me. Okay, but in this scenario I was not told that how much x and how much y is mixed together. Understood? And unless the ratio is not given to me, that in per kg, in a kg, that is in 1,000 grams, how much is x and how much is y, then unless this information is not given to me, how can I calculate that what would be the cost price of x and what would be the cost price of y and what would be the cost price of the combined mixture? और तुमने अगर ये कहा कि सर 1-1 किलो लेके एवरेज निकाल देता हूं, तो फिर तो भैया देखो, इस लेवल की गणित मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो तुम पढ़े लिखे हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? और जो लोग मुझसे परिचित हैं उन्हें पता है कि डेमोक्रेसी कोई खास पसंद है नहीं मुझे। आंसर इज इक्वल टू व्हाट? बोलिए। बोथ वन, यस एग्जैक्टली, बोथ वन एंड टू आर नॉट सफिशिएंट। बोथ वन एंड टू आर नॉट सफिशिएंट। नवीन क्या कर रहे हो बेटा, ध्यान से। वन एंड टू आर रिक्वायर्ड, बट इवन आफ्टर यूजिंग वन एंड टू यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज you have been not given with the ratio in which x and y are mixed। बोलो, हो गई जी बात खत्म। Shall I proceed? This is a previous year question, I guess 2017। तो दो ही बचे हैं, जल्दी देख लो फटाफट से। गोपाल bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit। ठीक है, सो ऐसा मान लेते हैं कि केस वन, गोपाल CP for Gopal is equal to 100, then he sold it to Ram at 10%। Therefore SP of Gopal is equal to 110, and this is the CP for Ram। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है तुम्हारा, मैं बोलो, इतनी बात पल्ले पड़ती है बेटा, नहीं पड़ती? ओके, then Ram want to sell it back to Gopal at 10% loss। What will be Gopal's position if Gopal agreed? ठीक है, राम चाहता है कि वो इस आर्टिकल को गोपाल को दोबारा बेच दे और राम 10% का लॉस झेल ले।
ओके, सो सीपी फॉर राम, सीपी फॉर राम वॉज 110। अगर वो लॉस लेगा 10% का, देन एसपी वुड बी 110 माइनस 11, बिकॉज 10% ऑफ 110 इज 11, 99। So in this scenario, if Gopal will again purchase it for 99 rupees. So initially Gopal purchased it for 100 rupees and now Gopal will get it for 99 rupees. Here also Gopal will make how much profit? 1% profit will Gopal make. Therefore, if Gopal agreed to this, Gopal will be having a gain of 1%. Batao, done? Wasn't it easy? बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, व्हेन राम विल सेल इट टू गोपाल द कॉस्ट प्राइस फॉर राम विल बी 110 रुपीज एंड 10% ऑफ 110 इज 11 नॉट 10। यही वो छोटी सी गलती है जो तुम लोग करोगे। और देख रहे हो उसने पहला ही ऑप्शन दिया है, नीदर लॉस नॉर गेन। जैसे ही तुमने यहाँ पर लॉस 10 रुपए लेते तुम्हारे पास 100 आ जाता, नीदर लॉस होता नॉर गेन होता, तुम्हारा आंसर गलत हो जाता और 1 साल का नुकसान हो जाता। चलो भैया, a man bought a car and sold it for 3 lakh rupees. Therefore, SP is given. कितना बालकों? 3 लाख रुपया। If he incurred a loss of 20%, हाय 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 हाय, कितना मासूम सवाल है। 20%, then how much did he spend to buy the car? You have to calculate the CP. बहुत बेसिक डायरेक्ट बोलो, isn't it? Isn't it direct or not? ठीक है, डायरेक्टली पुट द वैल्यूज, यू कैन डू इट फ्रॉम द ऑप्शंस एज वेल, बट वी विल पुट हेयर द वैल्यूज। 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 इज 80 इनटू व्हाट सीपी, दैट इज 3 लाख। बस जीरो सही से लगा लेना। आई हैव यूज दिस फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। दिस वाज आस्क्ड इन आई गेस 22 और 21, नहीं दिस वाज 2020। या एग्जैक्टली। हाँ भाई, ये तो कट गया, कट गया। अब क्या करूँ आगे? सॉल्व करना पड़ेगा यार, इसको कर लोगे ना तुम लोग सॉल्व? तुम अच्छे बच्चे हो, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। 8 या 24, बचेंगे 6 0। 8 7 56, 5, तो 1 2 3 यहाँ तक चलेगा, 0 0 एक जीरो और लग जाएगी। 3,75,000 रुपए। This means that car was purchased for 3,75,000 rupees only. बोलो बालकों, आई बात समझ में? हाँ दे देना तुम 7 करोड़ रुपए, खुश हैप्पी। हाँ जी, बोलो। हाउ वाज द सेशन? ठीक है, नाउ नेक्स्ट। यूजफुल, चलो अच्छी बात है। शुक्र है तुम लोगों को समझ में आया बेटा, पेपर निकाल लेना बस, और बाकी सब ठीक है। और एक वो मेरे चैनल पे जरा लाइक सब्सक्राइब तुम 2 4 बालकों से करा दो, तो तुम्हारा ही भला हो मेरा ही भला हो। Next class we will be having on 6th January. Tomorrow we will not be having any class, and in next class we will specifically look at the discount questions. Okay, बोलो जी, डन है इतनी चीज? और ये देखो, तुम्हें हाथों हाथ में क्या कर देता हूँ, तुम्हें हाथों हाथ में सौंप देता हूँ, कुछ तो सौंप ही देता हूँ। आज के लेक्चर की स्लाइड में तुम लोगों को दे देता हूँ।
ठीक है ना, एक काम और खत्म होगा ना उसके साथ साथ, और लेकर दूंगा यूट्यूब पर तुम्हारा। इट विल टेक अबाउट 1 आवर और सो। ठीक है। बाकी तुम लोगों को कोई भी समस्या हो, तुम लोग मेरे से सीधा संपर्क साध सकते हो। तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, मेरा फ़ोन नंबर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब चीज़ें हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो ठीक है, जय। भागू मैं। तुम लोग भी खाना वाना खाओ जाके, और बताओ नए साल का क्या प्लान है तुम लोगों का। एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दें।